ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪ ਕਲਾਸਿਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4th ओल्ड ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ 51st ਕੁਐਸਚਨ। ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆਫ ਅ ਗ੍ਰਾਫ of the relationship between the price of the goods and the ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਇਜ਼ ਆਫ ਅ ਗ੍ਰਾਫ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਆਂਸਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਓਰਲੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਵੇਚੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ 11th ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਿਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ। ਹੁਣ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ, ਫਿਰ 11 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਦੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਆਰ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਫਰਮ ਆਪਰੇਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, where the one input is a variable and all other inputs are fixed। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਅ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 55 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਮੈਥਡ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਮੇਜਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ 3 ਹੀ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਥਡ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਕਰ ਵੈਨ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫॉर ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਕੋਸਟ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਰਹੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ 57th। ਨੈਕਸਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨ ਬਾਏ ਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੱਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਏ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਓਨਲੀ ਅ ਵਨ ਬਾਇਰ। ਵਨ ਸੈਲਰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਵਨ ਬਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਨ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਡੋਪੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਅੰਡਰ
वन बायर हुंदा, वन बायर ऑफ द प्रोडक्ट हुंदा। सो इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो की है ए। नैक्सट, इन विच केस लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड कित्थे अप्लाई नहीं हुंदा, कुछ अपनी असम्पशनस होंदियां ने जे तुसीं पढ़ियां होईयां तां जिथे स्टेटस आ उत्थे लॉ ऑफ डिमांड मतलब प्राइस का डिमांड ना कोई इफैक्ट नहीं पैंदा। जे आपां स्टेटस की गल कर रहे हैं, गिफन गुड्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता। जे एक्सपैक्टेशनस रिगार्डिंग द फर्दर प्राइस, जे फ्यूचर के प्राइस घटन वधन के चांसिस होण तां हुण अपनी डिमांड से इफैक्ट पैंदा। सो लॉ ऑफ डिमांड आ जिहड़ा इत्थे भी इंप्लीमेंट नहीं हुंदा। सो करैक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव आर करैक्ट, जिथे कि यह अप्लाई नहीं हुंदा। नैक्सट, विच इज़ अ नॉट सोर्स ऑफ ओलीगोपोली। ओलीगोपोली का किहड़ा सोर्स नहीं गा। पहली गल, ओलीगोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है, उहदा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नाल, पेटेंट्स राइट्स नाल डायरैक्टली कोई लिंक नहीं है, इकोनॉमी ऑफ स्केल नाल कोई लिंक नहीं गा। सो इहदा करैक्ट आंसर है डी है। नैक्सट, कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्ट्रीब्यूशन तुसीं लैके देखा होना, जो तुसीं लास्ट 3 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो सुनी उत्थे भी ये डिस्कस किया गया। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट आ। कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉम्बीनेशन ऑफ द, कॉन्ट्रीब्यूशन किहदा कॉम्बीनेशन है, याद रखियो। कॉन्ट्रीब्यूशन किहदा कॉन्सैप्ट आ, फिक्सड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स का कॉन्सैप्ट आ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन किहदे इक्वल हुंदा, फिक्सड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स। ते ब्रेक इवन पॉइंट के बारे भी तुहानूं पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, टैबूलेशन ऑफ अ डाटा इज़, हाँ जी, टैबूलेशन ऑफ डाटा किस चीज़ नूं कहंदे ने। पहली गल, नीड्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर टैबूलेशन बनाने की जरूरत हैगी आ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स टैबूलेशन तो बना नहीं किया जाता। टैबूलेशन मीनस टेबल, टेबल बनाया जाता, चाहे वो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने लई, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने लई, एवरीथिंग। सो ये स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक फंक्शन आ, ये भी ट्रू आ। बट इसका कोई स्टैटिस्टिक्स का ये ऑब्जैक्टिव नहीं गा कि आप टेबल ही बनाने आ डाटा का। बट ये कोई ऑब्जैक्टिव नहीं, बिना जे अपना टेबल बनाए भी क्वेश्चन सॉल्व होंदा तो आप उदा भी कोई भी एनालाइज कर सकते हैं। बट बेसिक ये नीड भी आ तो फंक्शन भी आ। सो करैक्ट आंसर की है डी। नैक्सट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड अंदर यूजफुल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर किहड़ा यूजफुल नहीं गा। देखो, रिलेटेड विद द अवेलेबल टैक्नीक्स, बहुत सारी टैक्नीक्स भी यूज़ की जांदियां, एग्जिस्टिंग थ्योरीज नाल भी कोरिलेट किया जाता। इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर आ वो की आ डी। सैंपलिंग इज़ नॉट जरूरी नहीं, सैंपलिंग आप इंक्लूड की जाए इहदे अंदर हाइपोथेसिस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सोर्सिस ऑफ द एरर, क्योंकि हाइपोथेसिस इज़ जस्ट अ इमेजिनेशन। पहली गल, इत्थे सैंपलिंग की जरूरत नहीं पैंदी। आप पुरानी टैक्नीक्स नूं जो अपने यूज़ किया है, जो पुरानी थ्योरीज हुई उस जो पुराना एनवायरनमेंट के अंदर होके हटिया उन्होंने कोरिलेट करके आप हुण एक हाइपोथेसिस बना लेने, एक स्टेटमेंट तैयार कर लेने किसी भी चीज़ को लैके कि फ्यूचर दे विच इदां हो सकता। इट्स जस्ट अ थिंकिंग हाइपोथेसिस। सो इट्स इत्थे सैंपलिंग की कोई यूजफुल नहीं गा। सो ये तां करके करैक्ट आंसर की सीगा डी। नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स ऑफ एरर। हाँ जी, सोर्स ऑफ एरर की है, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल लैंग्वेज है। सोर्स ऑफ एरर की है, पहली गल एरर ऑफ ओरिजिन कुछ नहीं होंदा, मैनिपुलेशन भी कुछ नहीं होंदा, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी नहीं होंदा, एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन जो आप इंटरप्रिटेशन करते हैं जो उदों एरर होंदा। यही एक बेसिक सब तो बड़ा कारण बनता कि जो एरर आ जिहड़ा क्रिएट होंदा जो आप इंटरप्रेट कर रहे होंगे डाटा नूं। सो करैक्ट आंसर इज डी। नैक्सट, इफ द पॉपुलेशन साइज इज 4600 यूनिट्स, द सैंपल साइज इज 500 यूनिट्स, दैन द रेशो, इन्हां दी रेशो की होगी 4600 डिवाइडेड बाय 500। 4600 डिवाइडेड बाय 500 जो तुसीं कर दोगे तो थोड़ी ईजिली रेशो आ जूगी। सो इसका करैक्ट आंसर आ ए है। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, द कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स द वट इज द प्रोबेबिलिटी। हुण अजकल अपने अपन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सुनों हट गए, मैथमेटिकल पार्ट आ गया, बट इसका करैक्ट आंसर है हुण आप डिस्कस कर लेने। इसका करैक्ट आंसर की है सी। नैक्सट, हाइपोथेसिस आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं। हाइपोथेसिस कोई ऑडिटिंग टूल नहीं गा, हाइपोथेसिस कोई कैलकुलेटर नहीं गा, कोई प्रोडक्शन नाल डील नहीं करता। एक ही है, एक जस्ट आ स्टेटमेंट होंदी है पॉपूलेशन नूं लैके। जिवें कि आप स्टेटमेंट चैक करने हो कि लोगों की कोलगेट या पेप्सोडेंट बारे की राय आ, दैन आप जी जो भी अपनी कोई भी टैसट आ या चैक करन तो पहला आप इमेजिनेशन करते हैं कि यस लोग कोलगेट नूं लाइक करते होंगे या पेप्सोडेंट नूं लाइक करते होंगे। सो एक जस्ट अ स्टेटमेंट। इसका जो करैक्ट आंसर है वो किया ए। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वेरीएशन। हाँ जी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होंदा तो मीन मीडियन मोड चो आंसर होना सी। हुण इत्थे वेरीएशन की गल की गई है तो जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो की है बी। नैक्सट क्वेश्चन, द प्रिंसीपल, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन क्या रहा, द प्रिंसीपल
of party of the authority and the responsibility is related to the हाँ जी कहता जो प्रिंसीपल ऑफ द पार्टी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ डील करता डिसेंट्रलाइजेशन है या सेंट्रलाइजेशन है नो डिविजनलाइजेशन भी नहीं डील करता अटॉर्नी डील करता एक डील करता डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसका करेक्ट आंसर की है बी नैक्सट क्वेश्चन विच वन इज़ नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन प्लैनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग कंट्रोलिंग डायरैक्टिंग जो तुम बोल के देखोगे तो थोड़े दिमाग ऑटोमैटिकली आंसर आ जाऊगा कितने भी कोऑपरेशन है जोड़ा वो नहीं आता नैक्सट क्वेश्चन ऑल्थो डिले आर कॉस्टली द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग द ऑल डिले मे बी ईवन मोर कॉस्टली कहते जो कोई भी चीज़ डिले हो जाती है जो आप उस चीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं फिर होर डिले हो होर कॉस्टली अपन पैंदा सो ये किहड़े अंदर आउंदा तुसीं गेम थ्योरी ऑपरेशन रिसर्च एक अपनी बुक सीगी कॉमर्स बीकॉम के अंदर तुसीं पढ़िया होना लीनियर प्रोग्रामिंग भी पढ़िया एक्स वाई में लैके प्रोबेबिलिटी भी पढ़िया इन्हां दे अंदर ये नहीं आउंदा किहदे अंदर आउंदा क्यूइंग थ्योरी के अंदर आउंदा ये कॉन्सैप्ट किहड़े दे अंदर आउंदा क्यूइंग थ्योरी के अंदर आउंदा नैक्सट हॉरिजेंटल कोआर्डिनेशन इज़ रिलेटेड टू द हाँ जी हॉरिजेंटल कोआर्डिनेशन इज़ रिलेटेड टू कोऑपरेशन जिहड़ा हॉरिजेंटल कोआर्डिनेशन है वो किस चीज़ नाल डील करदा कोऑपरेशन है जो सारे आपस में मिलके काम कर रहे हैं हॉरिजेंटल मीनस सारे मिलके आपस दे विच काम करते उत्थे किस चीज़ की जरूरत होंदी है कोऑपरेशन की नैक्सट क्वेश्चन द प्रिंसीपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज हाँ जी यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज वो की कहंदा वा यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज हाँ जी क्वेश्चन सोच के देखो यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज जे तुसीं कॉन्सैप्ट इहदा पढ़िया है तो थोड़ा ईजिली आंसर आ जाऊगा प्रिंसीपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज दैट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द लाइन अथॉरिटी दे विच जो अपन इंस्ट्रक्शंस मिलती है उस चीज़ को कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज वो इत्थे इंप्लीमेंट होंदा नैक्सट जॉब रिलेशन मीनस सौखे क्वेश्चन तो आप स्पीड ना करें अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जॉब रिलेशन इत्थे रिलेशन वर्ड यूज़ किया जॉब रोटेशन नहीं यूज़ किया जॉब एनालाइसिस नहीं यूज़ किया जॉब रिलेशन यूज़ किया सो जॉब रिलेशन रीअरेंजमेंट ऑफ द जॉब कंटेंट जे कंटेंट नहीं गा कंटेंट नाल कोई रिलेशन नहीं गा जॉब रिलेशन दा रोटेशन नाल भी कोई फर्क नहीं फिर जॉब रोटेशन हुंदा इत्थे जे आपां नूं जॉब रोटेशन पुछण दा शायद अपना ये आंसर हुंदा बट इत्थे पूछा गया जॉब रिलेशन फिर की आ गया चेंजिंग अ पीपल इन द जॉब चेंजिंग अ पीपल इन अ जॉब दे विच जॉब रिलेशन की गल आ जाती है सो ये करैक्ट आंसर है वो की आ सी नैक्सट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किहड़ी हुंदी है हाँ जी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ नूं कहंदे ने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहंदे ने वेयर वन अ प्रोजेक्ट इज़ असाइनड टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक प्रोजेक्ट एक मैनेजर नूं असाइन करते हैं उस चीज़ नूं कहंदे ने मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन सो इसका करैक्ट आंसर की आ सी नैक्सट क्वेश्चन जॉब रिलेशन आप कर चुके हैं जी ऑलरेडी चेंजिंग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिया नैक्सट क्वेश्चन द प्रोसैस ऑफ इवैल्यूएटिंग द इंप्लॉइज़ परफॉर्मेंस हाँ जी इंप्लॉइज़ की परफॉर्मेंस नूं इवैल्यूएट करना कित्थे ऑन द जॉब फिर उस चीज़ को कहते हैं जॉब रोटेशन तक काम करना होंगे भी एक जगह तो दूसरी जगह जॉब एनालाइज आप उदों करते हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसैस होंगी एनालाइज करना कि कि जॉब आ किस तरह का परसन चाहिए किन्नी फीस होगी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम आ इसका कोई लिंक नहीं गा मैरिट रेटिंग इज़ अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन 360 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो भी तुसीं पढ़ के जरूर जाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो ये करैक्ट आंसर है डी नैक्सट ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हाँ जी किस तरीके की कम्युनिकेशन है फॉर्मल इनफॉर्मल हॉरिजेंटल या स्वॉट सो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज़ अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सो करैक्ट आंसर इज बी नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी स्कैलर प्रिंसीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप लास्ट वीडियो के अंदर भी पढ़िया सी लास्ट क्वेश्चन पेपर भी आया सी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैलर प्रिंसीपल एक किस चीज़ डिफाइन करता स्कैलर प्रिंसीपल जो डील करता वो की आ लाइन ऑफ द अथॉरिटी मस्ट बी क्लीयरली डिफाइन जो एक परसन बाकी परसनस में इंस्ट्रक्शंस दिंदा क्लीयरली इंस्ट्रक्शंस दिंदा उस चीज़ को कहते हैं स्कैलर प्रिंसीपल सो लाइन ऑफ द अथॉरिटी मस्ट बी क्लीयरली डिफाइन नैक्सट द यूनिटी ऑफ कमांड इज़ अ प्रैक्टिसाइज इन अ यूनिटी ऑफ कमांड हाँ जी यूनिटी ऑफ कमांड किसके अंदर आता इस प्रैक्टिसाइज किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन अंदर 80th जो करैक्ट आंसर आ वो किया यूनिटी ऑफ कमांड किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता डी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप एक परसन बाकी परसनस नूं
इंस्ट्रक्शंस कमांड दिंदा होवे, सो इस चीज़ नूं कहंदे ने लाइन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, SWOT इज़ रिलेटेड टू पेलिकल SWOT दी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रैट। ये किस चीज़ नाल डील करदा, देखो जे तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ कनक्लूड करके देखोगे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऑर्गेनाइजेशन ਦੀ वीकनेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़ बारे पता होना चाहिए, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ प्लैनिंग कर सकांगे। सो करैक्ट आंसर इज प्लैनिंग। नैक्सट, द टैक्नीक ऑफ कैरेट एंड अ स्टिक इज़ यूजड। हाँ जी, ये कित्थे टैक्नीक यूज़ की जाती है, ये रिडक्शन। वैसे तो आप कहांगे कि स्टिक की गल आ गई, चलो जी ये एबसेंटीज़ नूं सुधारन दे लई हुंदा या कंट्रोल करन दे लई हुंदा, बट नहीं, इत्थे आंसर नहीं गा। बट जिहड़ा करैक्ट आंसर आ की है, ये मोटिवेशन टैक्नीक आ, ये यूज़ की जाती है। सो करैक्ट आंसर इज डी। नैक्सट, हू डेवलप द थ्योरी Z थ्योरी मैनेजमेंट की किहदे द्वारा डेवलप की गई। मैं तुम दस देना, इत्थे एक छोटा जिहा हिंट दे देना कि मैं एक वीडियो स्पैसीफिक बनाई हुई है, जिस वीडियो के अंदर सारे मैनेजमेंट के थ्योरीज, राइटर्स किन्हां द्वारा किहड़ी बुक्स दी गई, किहड़े पर्सन ने किहड़ी थ्योरी नूं डेवलप किया, इस उपर एक स्पैसीफिक वीडियो बनाई गई है। तुसीं उहनूं जरूर सुनो, थोड़ा टाइम भी बचूगा क्योंकि एक स्पैसीफिक क्विक रिवीजन हो जूगी थोड़ी। इहदा एक जो लिंक आ इस वीडियो का, वो मैं थोड़े थल्ले डिस्क्रिप्शन शो कर दूँगा, तुसीं उहनूं जरूर सुनियो। सो बैक टू वर्क। हू डेवलप द Z थ्योरी किहदे द्वारा बनाई गई सी, विलियम्स ओची। तुहानूं पता होना चाहिए इत्थे X थ्योरी, Y थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरीज ने कई किहदे द्वारा डेवलप की गई। सो ये सारी चीज़ों के अंदर वीडियो के अंदर डिस्कस की गई, तुहानूं पता होना चाहिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाते अपन एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट आ। सो ये करैक्ट आंसर इज B। नैक्सट क्वेश्चन, स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। हाँ जी, ये लास्ट वीडियो के अंदर भी आया सी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आया सी, जिथे एक मैनेजर हुंदा ते नंबर ऑफ सबऑर्डीनेट्स होंदे ने, उस चीज़ नूं कहंदे ने स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो करैक्ट आंसर इज C। नैक्सट क्वेश्चन की है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंदी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सुनिया आपां हुंदी आ, पढ़िया भी आ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी सुनिया, बट बच्चे क्या करते हैं मोस्टली कहते हैं कि कमेटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंदी। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन भी होंदी आ, जे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंदी तो वो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंदी, ये कोई भी फॉर्म नहीं गी। सो इसका जो करैक्ट आंसर है वो की आ B। नैक्सट, हाँ जी, वैन सीमेंट मिल, स्टील मिल और अ कैमिकल मिल, ये तिन्ने कंबाइन हो जांदियां तो इस चीज़ नूं की कहंदे ने, ये किस तरह की कॉम्बीनेशन बन जाता। इट्स अ केस ऑफ अ सर्कुलर कॉम्बीनेशन। इट्स अ केस ऑफ द सर्कुलर कॉम्बीनेशन। जो तिन्ने तरह दी मिल्स बनदियां वो सर्कुलर कॉम्बीनेशन बन जाता। नैक्सट देखो, हॉरीजेंटल पेलिकल, हॉरीजेंटल तो वर्टिकल की होंदा, जो सेम या फिर अप एंड डाउनवर्ड होण, ये की आप टोटली अलग अलग ने, ये तिन्ने मिल्स अलग अलग ने। जो ये तिन्ने मिलन गया तो कुछ ना कुछ नवी प्रोडक्शन होगी, एक सर्कल की फॉर्म च आऊगा। नैक्सट, कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द इंप्लॉइज़। हाँ जी, मैनेजर तो इंप्लॉइज़ के कम्युनिकेशन की कहते हैं, वेरी ईजी क्वेश्चन, इंट्रा स्कैलर कम्युनिकेशन होंदा वा मैनेजर ते इंप्लॉइज़ दे विच। सो करैक्ट आंसर इज C। नैक्सट, इंडियन रेलवे इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इंडियन रेलवे इज एग्जाम्पल ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए थोनों, ईजी क्वेश्चन वाले। हाँ जी, नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट। हाँ जी, किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेट, नो करैक्ट पूछा उन्होंने। सो कैन नॉट बी डेलीगेट, अथॉरिटी डेलीगेट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेटेड की जाती है। सो एक करैक्ट आंसर है जो B है, की है करैक्ट आंसर है। नैक्सट, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो टुगेदर, इकट्ठे ही चलते, जिथे जिम्मेवारी दी उत्थे पावर भी दी जाऊगी। सो जो करैक्ट आंसर की है B। नैक्सट, 90th क्वेश्चन, एल्टन मायो। जिमें कि मैं उपर दस ही चुकिया कि स्पैसीफिक वीडियो बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिहदे विच हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ नूं कंसीडर किया गया, ताकि थोड़ा बिना टाइम वेस्ट कीते तुसीं इमीडिएटली थोनों ऑथर राइटर्स नूं बुक्स के अलग अलग लभण की बजाय एक जगह प्रोवाइड कराया गया। जरूर सुनो उस वीडियो नूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर पाई जाऊगी। एल्टन मायो इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर टू द। हाँ जी, एल्टन मायो ने किस चीज़ को डिफाइन किया। एल्टन मायो ने डिफाइन किया ह्यूमन रिलेशनशिप। मैं उस वीडियो के भी कहा कि जिथे भी एल्टन मायो मिले उत्थे ह्यूमन रिलेशनस जरूर लिखा होगा, तो वह करैक्ट आंसर होगा। सो करैक्ट आंसर इज D। नैक्सट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, एल्टन मायो। हाँ जी, मैनेजमेंट इज़ टुडे कंसीडर द प्रोसैस ऑफ। पुरानी मैनेजमेंट कितना कंसीडर करती थी,
getting a work done through others, but today's management ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, work with others, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ B। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ? ਹਾਂਜੀ, ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਅਥਾਰਟੀ ਫਲੋ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਲੋ ਅਪਵਰਡ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ, C। MBO ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜਿਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਏ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਸਪੈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਲੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਪਲਿਟ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਦਾ ਗੋਲਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ MBO ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼ ਆ ਮੇਨਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਹਾਂਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ, D। ਨੈਕਸਟ, ਬਾਊਂਡਡ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇਨ ਅ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਟਾਫ ਅਥਾਰਟੀ, ਲਾਈਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ ਅਥਾਰਟੀ। 96 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਈਨ ਅਥਾਰਟੀ। ਲਾਈਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਊਂਡਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ A। ਨੈਕਸਟ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਰ ਇਨ ਬੋਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫੋਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ that the leadership are in born. So correct answer is D। Next question, the form of the organization which have not a specific act, ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 1932 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਨਾਟ ਪੁੱਛਿਆ। 1912 ਕੰਪਨੀਜ਼ 2013 ਨੇ, ਬਟ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ D। ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ D। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਰਸ ਅਪੋਜ਼ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਦਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟਰੈਚਮੈਂਟ। ਰਿਟਰੈਚਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਕਰ ਅਪੋਜ਼ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਰਿਟਰੈਚਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ C ਆ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।